Good morning, student. Myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Student, today we will talk about for the drawback of Rutherford nuclear model. But before starting about the drawback, let's talk about first the Rutherford model or Rutherford nuclear model once again in a very short period of time. Rutherford nuclear model. As I have told in my previous video that Rutherford was very interested to know about the actual position of the electron inside the atom. So he just started an experiment which is known as alpha particle scattering experiment, and from that experiment he successfully explained where the electrons or protons will present inside the atom. So for this he just explained the actual position for the electron as well as for the proton in after his experiment. Clear? Finally he said that the electron, first the positive part are present in the center of the atom in a very little part or in a dense part which is known as nucleus, and the nucleus contains the positive charge, and this positive charge of the nucleus is the proton. That means the positive charge which are present in the nucleus, this is the protons, and similarly he just said that the electron will revolve around the nucleus, and that area are considered as the orbit. That means here we can clearly say that the electrons are present or electrons will revolve in the orbit and the proton will present inside the nucleus. So this is an atom, an atom contains a positively charged species, that is the nucleus, and this nucleus contains the proton inside it, and the space around the nucleus which is known as orbit. In this orbit the electron revolve continuously, he just said. Clear? So here the position of electron as well as proton have been fixed or have been known with the help of Rutherford nuclear model. Clear? Now though some scientists also talk about for the stability of the atom. Clear? When he proposed his model. Let's talk about for how he explained the stability of atom. You know very well that electron have a negative charge. Electron have negative charge, and proton which are present inside the nucleus have a positive charge. Here, that means the electron have negative and proton have positive charge. And when talk about for Rutherford model, the proton are present inside the nucleus and electron outside, that is the space around the nucleus which is known as orbit. Clear? So the first question is that how atom is stable when electron and proton will present in the atom, although there will be the electrostatic force of attraction. Clear? Look at the question. इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के जो बाकी जो एम्प्टी स्पेस है जिसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट हैं
तो आपको पहले से ही पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टू ईच अदर ड्यू टू अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और जब इंटरेक्शन होगा तो ऐसे इंटरेक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहिए या इंटरेक्शन कह रहे हैं। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि एटम जो है, हम जान रहे हैं कि एटम जो है कैसे स्टेबल होगा, एटम जो है वो कैसे स्टेबल होगा, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होंगे तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने के बावजूद भी एटम क्या है, स्टेबल है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाएगा, या प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। तो ऐसे में ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ मिल जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से मिल जाएंगे तो एटम की स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इस चीज को एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने। कैसे एक्सप्लेन किया, जैसा ये आप सब लोगों को बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्बिट में है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, एक जगह रुका नहीं है। अगर एक जगह रुका रहता तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इंटर कर जाता, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूअसली, और उसके रिवोल्यूशन से, यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर एक फोर्स जनरेट कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो एक फोर्स जनरेट होगा आफ्टर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एक फोर्स जनरेट होगा, इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, उसके रिवॉल्व करने से एक फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये फोर्स ज्यादा है इस फोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी प्रोटॉन के पास नहीं पहुंचेगा, या इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोटॉन के साथ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में एटम जो होगा वो स्टेबल होगा। इस चीज को रदरफोर्ड ने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। सब कुछ सही हो रहा था। रदरफोर्ड के मॉडल को लोग काफी अच्छे से कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल से न्यूक्लियस की बातें समझ में आई, और ये जो सारी चीजें थी ये सब वो समझा चुके थे। अब इनके हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। व्हाट वाज द डीमेरिट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि इनकी भी डीमेरिट है, इनके मॉडल्स की डीमेरिट है, और उस डीमेरिट की वजह से इनके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया और एक नया मॉडल आया जिसको हम बोर मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनके डीमेरिट्स को कंसीडर करेंगे कि डीमेरिट्स है क्या या ड्रॉबैक है क्या। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब इनके मॉडल में ड्रॉबैक कहां से आ गया, भाई सब कुछ तो ये सही से बताए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्रॉबैक आया तो कहां से आया, हमें वो कंसीडर करना है। तो ड्रॉबैक आया, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल की एक थ्योरी है, जो थ्योरी उनकी रिलेटेड है इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। क्लार्क मैक्सवेल की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, यानी इन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, इसमें इन्होंने, मैक्सवेल ने ये बताया है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, when any charge particle will revolve with respect to the another charge particle,
when a charged particle will revolve with respect to the another charged particle, then the charged particle which revolve will emit a kind of radiation or a kind of energy. क्लियर? अब ये चीज जो क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा, मतलब उन्होंने क्या बताया है, हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब एक चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल आप क्लास 9th में, ठीक है, आप क्लास 9th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एसएसटी है या साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मैथ है, इंग्लिश है, बहुत सारी, अगर आपको 9th के अलावा 10th के भी सिलेबस को कंसीडर करना हो, 11th के भी सिलेबस को कंसीडर करना हो, तो ऐसे में क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये आप कर नहीं पाओगे। धीरे धीरे क्या होगा, आप जैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए आप एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ रहे हो, वो है क्लास 9। यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर इसके रिस्पेक्ट में कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट अगर करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी, और जैसे उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ जाकर मिल जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट जो था क्लार्क मैक्सवेल का, वो कोरिलेट कर दिया जाए किसके मॉडल के साथ, रदरफोर्ड के मॉडल के साथ। ठीक है ना? और कैसे कोरिलेट किया गया वो आप यहां से समझेंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, एक तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, मान लीजिए ये एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये है इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा क्या है, जो क्लार्क मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसके बाद ये डायग्राम रदरफोर्ड के मॉडल में इस तरह बताया गया। अब ये है क्या, यहां से समझ गया, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी इम्पटी स्पेस है या जो वैकेंट स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने दूरी पे रिवॉल्व करेगा, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मतलब जगह, कोई पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस या रेडियस कुछ नहीं बताया। यानी बस उन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूअसली, बस इतनी बात करके उन्होंने अपनी बातों को वहीं पर खत्म कर दिया। क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी में जब ये देखा गया कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन जो है वो सेकेंड चार्ज पार्टिकल हो गया, तो मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में अगर रिवॉल्व करेगा, अगर ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो घूमने से इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इमिट सम काइंड ऑफ रेडिएशन, दैट्स व्हाई इट्स एनर्जी विल बी लो। यानी जब ये रेडिएशन इमिट करेगा तो एनर्जी इसकी कम होगी, और एनर्जी कम होते 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 एक समय ऐसी एनर्जी कम हो जाएगी कि ये न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फॉल हो जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे ही फॉल होगा तो एटम की स्टेबिलिटी जो है या रदरफोर्ड का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। दूसरे डायग्राम में मैंने वही बताया है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एरिया जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चालू किया रिवॉल्व करना, ये घूमते 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 ये आ गया कहां तक, न्यूक्लियस। यानी वो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया तो रिवॉल्व करने पर इसकी एनर्जी कम हो रही है, फिर रिवॉल्व किया फिर एनर्जी कम हुई, यानी ये एनर्जी कम होते होते एक समय ऐसा आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां फॉल हो जा रहा है, न्यूक्लियस पर।
और जैसे ही न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन फॉल होगा तो एटम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। यानी द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट। अब ये चीज जो क्लार्क मैक्सवेल ने बताया और जब रदरफोर्ड के मॉडल के साथ इसको कोरिलेट किया गया तो रदरफोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्रिएट हो गया। क्रिएट ये हो गया कि रदरफोर्ड से फिर ये बातें पूछी गई कि चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि जो क्लार्क मैक्सवेल बता रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग जब आपके मॉडल पर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो भाई लूज करेगा एनर्जी, ये तो तय है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते करते वो न्यूक्लियस में जब गिर जाएगा, एनर्जी कम होगी तो एटम की स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब रदरफोर्ड पड़ गए परेशानी में। परेशानी ये हो गई कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। और जैसे ही उनको परेशानी हुई उनके मॉडल को लोग धीरे धीरे उनके मॉडल को पढ़ना या उसको समझना कम कर दिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है यही था कि रदरफोर्ड अपने मॉडल में स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए। इसके पहले उन्होंने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर, लेकिन जब ये क्लार्क मैक्सवेल की बातों को जब पूछा गया तो वो यहाँ पर फेल हो गए। क्लियर। और इसके वजह से रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया और उसके बाद एक नए एटॉमिक मॉडल की शुरुआत हो गई जिसको हम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है किसका, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का। यानी अब हमें जो कंसीडर करना है उसका नाम क्या है, बोर मॉडल। क्लियर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बोर मॉडल। और ये जो बोर मॉडल है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग इतना देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर है। थैंक्स अ लॉट।